ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ او بی بی رکو، بات سنو میری، کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے فل تیار ہو کر اپنے دوست کی پارٹی پر جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، ارسل کی آواز سن کر جی جان سے کانپ گئی۔ اگلے ہی لمحے خود پر قابو رکھا اور لہجے کو مضبوط کرتے کہنے لگی، اپنی دوست کی پارٹی پر جا رہی ہوں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے وقت دیکھا ہے؟ یہ وقت شریف لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ میں نے دادی جان سے اجازت لے لی ہے اور آپ کے بابا بھی اس پر راضی ہیں۔ انہوں نے اجازت دی ہے لیکن میں نے نہیں۔ جلدی سے کمرے میں جاؤ۔ آپ کون ہوتے ہیں اجازت نہ دینے والے؟ بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جب میرے بڑے موجود ہیں تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور جہاں تک تعلق کا سوال ہے تو میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اچھے دستور سکھاؤں۔ مجھے جتنے دستور سیکھنے تھے میرے والدین مجھے سکھا چکے ہیں، اور باقی آپ کے والد بھی میری اچھی تربیت کر چکے ہیں۔ آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بہت احسان مند رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ ارسل نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لمبی زبان بالکل بھی پسند نہیں، خاص کر اپنے گھر کی عورتوں کی۔ ارسل صاحب، آپ کی یہ غلطی پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہی ہوں۔ دوبارہ میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں آپ کے ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ مجھ سے کسی بھی قسم کے لحاظ کی بالکل امید نہ رکھیے گا، کیونکہ میں آپ سے بالکل نہیں گھبراتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ میں بس آپ سے اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں کرنی چاہیے تھی، اور شاید اگر پہلے ہی میں آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ابھی اور اسی وقت تو مجھے اپنے لہجے کی معافی مانگو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، وہ وقت بیت گیا جب میں آپ سے ڈرتی تھی یا میرے دل میں آپ کا ذرا بھی خوف موجود تھا۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب مجھے اپنا آپ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ کے اس دو کوڑی کے ایٹیٹیوڈ کی بھی مجھے ہرگز پرواہ نہیں۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کو جا کر نصیحتیں کریں، مجھ پر بیجا غصہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے گزر چکی تھی، جبکہ ارسل غصے سے اس کی کمر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی، اب یہ دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کامران کے ساتھ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر موجود تھی۔ سب گھر والوں کو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی پارٹی میں جا رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا دوست ایک لڑکا تھا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ کامران نے جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اتنا اداس دیکھا تو تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارے میں تنگ آ چکی ہوں زندگی سے، مجھ سے اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، ہر کام اپنی مرضی سے کرتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ گھر والے مجھ پر یقین رکھتے تھے، مگر جب سے تایا جان کے پاس آئی ہوں تب سے زندگی الجھنوں کا شکار ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی الجھن ہے جو حل نہیں ہو رہی؟ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ یار، تمہیں میرے کزن کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ کتنا عجیب انسان ہے۔ مجھے تو کبھی کبھار وہ عقل سے پیدل لگتا ہے۔ کہیں تم ارسل کی بات تو نہیں کر رہی؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں، مگر وہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے، یوں جیسے مجھ پر حق رکھتا ہو۔ مجھے اس سب سے کوفت ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی عادی ہوں۔ ہاں میری پیاری گڑیا، میں ہر بات اچھے سے جانتا ہوں،
मगर तुमने तो मुझे बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, फिर ये सब क्या है? वही तो मुझे हैरत होती है कि वो अपनी मंगेतर को छोड़कर मुझे तंग करने क्यों आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेना शुरू हो गया है या उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है? कामरान ने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देखते कहा। तो वो जोर से उसके बाजू पर हाथ मारते कहने लगी, खबरदार, जो इस तरह का गंदा ख्याल तुमने अपने जहन में लाया। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की बातें करके तुम अपना पीछा मुझसे छुड़ा लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। शादी तो मैं तुमसे ही करके रहूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम कभी भी मेरा पीछा ना छोड़ो और हम दोनों एक पुरसकून जिंदगी गुजारें। उसने एक गहरी सांस ली। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं मोहब्बत का कितना भूखा हूं और तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुका हूं। अगर मुझे तुम ना मिली तो शायद मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करो। आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारा दिन है, अपने दिन को एंजॉय करो। चलो आओ फिर डांस करते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे फ्लोर पर ले आया। ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। यूनिवर्सिटी के सब लड़के लड़कियां वहीं पर मौजूद थे। वो इस वक्त हर चीज से मुकम्मल तौर पर बेनियाज होकर कामरान के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी। यूं तो उसे ठीक तरह से डांस करना नहीं आता था, मगर वो इतना बुरा भी नहीं कर रही थी। हर तरफ हूटिंग हो रही थी, जबकि उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो। कामरान ने ये बात कोई 5वीं बार कही थी। और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या तुम कर्ज उतारने के लिए दोबारा मेरी तारीफ करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम वाकई बहुत हैंडसम हो। तुम ये बात मेरी तारीफ से पहले भी कर सकती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक में मसरूफ थे, ये जाने बगैर कि वहां पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो उन दोनों की वीडियो बना रहा है। जब डांस करके फारिग हुए तो अचानक ही फामिया की नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। क्या हो गया? क्यों परेशान हो गई? असल में मुझे घर जाना है। ताया जान ने मुझे सिर्फ 12 तक बाहर रुकने की इजाजत दी थी, मगर अब टाइम ऊपर हो गया है। यार, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, समझदार हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले जब तक मैं अपनी मां के घर में मौजूद थी, तब तक तो वाकई मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वो भी तुमसे वाकिफ थी। उन्हें पता था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मगर अब ताया जान की फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती? इस तरह तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर ऐसे कुछ हल होना होता तो बहुत पहले हल हो चुका होता। मेरी जिंदगी में बहुत सी पेचीदगियां हैं जिनके बारे में तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। फिलहाल मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मोहतरमा, पहले कभी हमने आपकी बात से इनकार किया है जो अब करेंगे? चलें, आपको आपके घर तक पहुंचा देते हैं। वो गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। वो भी उसके पीछे पीछे थी। तुम इस वीडियो का क्या करने वाले हो? समरीन, जो कि काफी देर से समंदर खान को मोबाइल उठाए वीडियो बनाते देख रही थी, फिलहाल पूछ पड़ी। क्या मतलब क्या कर रहा हूं? वो दोनों डांस करते बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल किया कि उनकी वीडियो बना लेता हूं। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? देखो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये कहकर वो करीब से उठने ही लगा था कि समरीन ने उसका बाजू पकड़ा। मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम कोई भी काम बगैर मतलब के नहीं करते। इसके पीछे तुम्हारा एक बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है। बेहतर यही है कि मुझे खुद बता दो।
वो गहरी सांस लेकर दोबारा से बैठ गया। अब की बार उसके लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुम तो मुझे जानती हो, फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए था कि मैंने इस वीडियो का क्या करना है। तुम ये वीडियो उसके घर वालों को दिखाने वाले हो, राइट? हाँ, ऐसा ही है। मैंने इससे इतनी मोहब्बत की कि मैं बयान नहीं कर सकता। उससे वादा किया कि उसे जिंदगी की तमाम खुशियां दूंगा। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर वो फिर इस कामरान के साथ चल पड़ी। अब तुम देखो कि इसका क्या अंजाम होता है। यार मेरी बात सुनो, तुम ज्यादती नहीं कर रहे, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी गुजारने का हक होता है। मैंने कब उसे मना किया था कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारे? अगर वो मुझे इशारतन इस चीज से मना कर देती तो मैं कभी भी उसके पीछे ख्वार ना होता, मगर उसने मुझे एक लंबे अरसे तक अपने पीछे लगाए रखा और फिर एंड में ये कहकर साइड पर हो गई कि हम तो अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंची थी। मैं सब समझती हूं यार, मैं सब समझती हूं, मगर अब जरूरी तो नहीं कि माजी की तलखियों को याद करके हालात को तकलीफ दे बनाया जाए। कुछ चीजें भूल जाने के लिए होती हैं। हाँ, मगर मेरे लिए भूलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब तो मुझे किसी बड़ी अम्मा की तरह नसीहतें करना बंद करो। अगर तो तुमने मेरी मदद करनी है तो ठीक है, वरना मैं खुद ही अकेले सब चीजों से निपट लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इस तरह की नहीं हूं जो बीच राह में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। मैंने तुमसे दोस्ती निभाने का वादा किया है और आखिरी सांस तक निभाती रहूंगी, चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा और फिर दोनों बैठकर वो वीडियो एडिट करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो वीडियो हर जगह पर वायरल होने वाली थी। फामिया नहीं जानती थी कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। वो नहीं जानती थी कि आज जितनी खुशी उसे मिली है, उससे दुगनी नफरत का सामना उसे करने को मिलेगा। चलो ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। खबरदार जो कोई नॉवल वगैरह उठा लिया, पहले ही तुम्हारी आंखों की हालत खराब है। देखो कितने हल्के पड़े हुए हैं। वो उसे घर के दरवाजे में छोड़कर जा चुका था और अब उसे नसीहतें कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो उसी के लहजे में कहने लगी तो बेसाख्ता कामरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी लम्हे फामिया के जहन में अपने कज़न अरसल का चेहरा घूम गया था। उसने अरसल को भी तो यही बात कही थी, मगर उसका रद्द अमल थोड़ा मुख्तलिफ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि आपका हर तरह का लहजा वही शख्स बर्दाश्त कर सकता है जो आपसे मोहब्बत करता हो या जिसके दिल में आपके लिए अच्छाई मौजूद हो, वरना हर कोई आपका ये लहजा बर्दाश्त नहीं करता और ना ही हर किसी का इतना ज़र्फ होता है। सोचों में डूब गई हो मोहतरमा, सर्दी बहुत ज़्यादा है और यकीनन आपको डर था कि आपकी ताया जान आपको घर से बाहर ना निकाल दें। अब जल्दी से कमरे में जाएं। जी मैं बस जाने वाली थी, ये कहकर वो तेजी से अंदर की तरफ भागी। अरसल, जो कि अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था, अपनी कज़न को एक अनजान शख्स के साथ गाड़ी में आता देखकर और फिर बातें करता देखकर उसका खून गुस्से से खौलने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज को तहस नहस कर डाले। अपने कमरे की हालत थोड़ी ही देर में वो तबाह कर चुका था। इसकी इतनी हिम्मत कि ये किसी और शख्स के साथ बात करे। उसने चिल्लाते हुए कहा, कल ही मैं बाबा जान से इस बारे में बात करता हूं और उन्हें कहता हूं कि इस लड़की को लगाम डालें, वरना यह हाथ से निकल जाएगी। उसने दिल ही दिल में सोचा। थोड़ी देर पहले ही वो उसकी पेंटिंग बनाने के लिए बैठा था। दरअसल वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उसकी पेंटिंग्स भी लाखों में बिकती थीं, मगर उसके दादा जान को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका पोता कारोबार में हिस्सा ले। अरसल बहुत ही तेज ज़हनियत का मालिक था। उन्हें यकीन था
कि अगर उनके पोते ने ये सब संभाल लिया तो कारोबार बहुत ऊपर तक जाएगा। मगर वो था जिसे अपनी पसंदीदा सरगर्मियों के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी ही महसूस नहीं होती थी। अभी उसने अपने कलर निकाले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके माथे पर बल पड़ गए। रात का वक्त था और यकीनन उसके आराम करने का था। सब हवेली वालों को उसने सख्ती से मना किया हुआ था कि कोई भी रात के 12 बजे के बाद मेरे कमरे में नहीं आएगा। ये अलग बात थी कि ये उसूल फामिया पर लागू नहीं होता था और ना ही कभी उसने उसे किसी चीज से मना किया था, बल्कि वो तो चाहता था कि वो हर काम में मदाखलत करे। मगर फामिया थी कि उसकी तरफ नजर उठाकर ही नहीं देखती थी। मैं इस वक्त मसरूफ हूं, जो कोई भी है वापस चला जाए, सुबह बात करूंगा, उसने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया। मगर फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गहरी सांस लेकर उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने ही परीशे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। तुम रात के इस पहर यहां क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में आराम नहीं है क्या? उसने गुस्से से पूछा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। सुबह कर लेना, फिलहाल मैं मसरूफ हूं। वो दरवाजा बंद करने ही लगा था कि परीशे बेचैनी से कहने लगी, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। कुछ भी सुने बगैर दरवाजा बंद ना करें, वरना मुझे तकलीफ होगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किस तरह की बातें कर रही हो? जब मैंने कहा कि मैं मसरूफ हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर फामिया यहां पर होती तो क्या आप उसे भी यही बात कहते? बेसाख्ता परीशे के मुंह से निकला। अब वो लड़की यहां पर कहां से आ गई? अरसल के माथे पर बल पड़ गए। वो कभी हम दोनों के बीच में से निकली ही नहीं थी। मुझे पता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप उसकी जात में दिलचस्पी लेते हैं। आप अपने अब्बा जान को ये सब बता क्यों नहीं देते? क्यों अपने साथ साथ मेरी जिंदगी अजाब बनाने पर तुले हैं? मैंने आपसे शादी नहीं करनी और ना ही मुझे आपकी जात से कोई दिलचस्पी है। ये सारी बातें तुम खुद ही मेरे अब्बा जान से जाकर कहो। उन्होंने ही तुम्हें मेरे सर पर बिठाने का फैसला किया है, वरना मुझे तो तुम जरा भी पसंद नहीं। बल्कि तुम जैसी रोतू लड़कियों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो अब जल्दी से यहां से भागो। उसे डांटकर वहां से भेज चुका था। वो मुंह बसोरती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो शाहिद से बहुत मोहब्बत करती थी, जो बचपन से उसका दोस्त था और अब यूनिवर्सिटी में उसका क्लास फेलो भी था। मगर जब से अरसल के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, तब से उसने शाहिद से भी बातचीत बंद कर दी थी। वो चाहती थी कि बस एक बार ये रिश्ता टूट जाए और वो शाहिद को बोले कि वो इसके घर में रिश्ता भेजे। मगर ना तो अरसल कुछ कहने को तैयार हो रहा था और ना ही उससे मोहब्बत जता रहा था। वो एक अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। उसका हाल ऐसा था, ना तो वो ठीक तरह से सांस ले पा रही थी और ना उसकी रूह निकल रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने गुस्से से कहा और फिर सारी चीजें जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। काफी देर तक बेचैनी से कमरे में टहलती रही। अचानक उसका ध्यान फामिया की तरफ गया। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि अब सिर्फ वही बाकी बची है जो उसकी मदद कर सकती है। उस वक्त वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। जब दरवाजा जोरदार तरीके से बजा, वो खौफजदा होकर अपनी जगह पर उठ बैठी। नींद खराब होने पर उसे बहुत गुस्सा आता था, मगर चूंकि ये उसका अपना घर नहीं था, इसलिए गुस्सा दिखा नहीं सकती थी। कौन है? उसने बेजारियत से पूछा तो दूसरी तरफ से परीशे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उठी और दरवाजा खोल दिया। ये छोटी सी लड़की उसे पहले दिन से ही बहुत पसंद थी। जब वो ताया जान के घर आई थी तब उसकी दोस्ती परीशे से ही हुई थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा?
वो उसका बाजू पकड़कर उसे टटोलने लगी। मैं बहुत तकलीफ में हूं फामिया, बहुत तकलीफ में हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे इस तकलीफ से बाहर निकलूं। ये कहकर वो मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। देखो, पहले मुझे सारी बात बताओ, मुझे डिटेल समझाओ, तुम्हें क्या हुआ? कहीं अरसल ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? यही तो मसला है ना, वो तो कोई बात क्लियर कर रहा है और ना ही मुझे आजाद कर रहा है। मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, मुझे उसकी जात से शदीद नफरत है। मैं चाहती हूं कि मेरा उससे पीछा छूट जाए, मगर तुम्हें तो पता है कि ताया जान जब एक बार फैसला करते हैं तो उस पर डट जाते हैं। तुम कुछ ऐसा करो कि उससे मेरा रिश्ता टूट जाए। फामिया एकदम परेशान हो गई। मैं क्या कर सकती हूं? यहां पर कौन सा मेरी कोई सुनता है? तुम प्लीज अरसल से शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वो तेजी से पीछे हटी और परीशे को डांटते हुए कहने लगी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किस तरह की बातें कर रही हो? बिलाशुबा मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे दूंगी। देखो, सिर्फ तुम ही हो जो उसे मुझसे दूर कर सकती हो, क्योंकि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है, इतनी कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब भी वो तुम्हें देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए अजीब व गरीब हरकतें करता है। हकीकत में तो वो तुम्हारा दीवाना है। तुम इस वक्त मुझे ठीक हालत में नहीं लग रही। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, नींद पूरी करो, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। फामिया ने उसे वापस भेजना चाहा तो वो उसके हाथ पकड़कर दोबारा से वहीं पर रुक गई। यार देखो, अगर वो मुझे इतनी मोहब्बत देता तो शायद मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती, मगर वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत का इजहार करता है। इस तरह से ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि तुम भी पछताती रहोगी। तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिल रहा है, तुम क्यों गौर नहीं करती? परीशे मेरी बहन, तुम वाकई मुझे इस वक्त नींद में लग रही हो और मेरे पास तुम्हारे सवालात के जवाबात भी नहीं हैं। चलो जल्दी से भागो मेरे कमरे से और जाकर आराम करो। मैं उसे जबरदस्ती बाहर निकाल चुकी थी और अब परेशान हालत में अपने कमरे में खड़ी अरसल के बारे में सोच रही थी। इस बात पर तो उसे भी शक हुआ था कि वो इसकी जात में दिलचस्पी लेता है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो इसे पसंद करने लगेगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अगर उसकी इस तरह की कोई अटेंशन है भी तो वो जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो कभी भी मुझे इस तरह से हाथ से निकलने नहीं देगा। पूरी रात वो इसी बारे में ही सोचती रही थी। समंदर खान ने वो वीडियो तो एडिट कर ली थी, लेकिन वायरल नहीं कर पाया क्योंकि कामरान ने उसे पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर चुका था। फामिया अपने ध्यान में मगन बैठी थी जब उसे यूं महसूस हुआ किसी ने जोर से उसकी कुर्सी को लात मारी हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, देखा तो करीब ही अरसल खड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? कुछ रात में परीशे की तरफ से होने वाली बातों का गुस्सा था और कुछ वो वैसे भी इस इंसान को पसंद नहीं करती थी। मोहतरमा, गलती आपकी है। शायद आप भूल रही हैं कि मैं यहां पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसने गौर से देखा तो सामने ही मेज पर कुछ फाइल्स पड़ी थी और उस कुर्सी पर भी उसका कोट पड़ा हुआ था। यकीनन वो यहीं पर बैठकर काम कर रहा था। हाँ तो ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम्हें बोलने के लिए ज़बान भी दी हुई है। अपने मुंह से कहकर मुझे बता देते, मैं यहां से उठ जाती। ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? दरअसल कुछ लोगों को मुंह की बातें समझ में नहीं आती। जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाए तब तक उन्हें बहुत सी चीजें पल्ले नहीं पड़ती। तुम सच में पागल हो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है।
ये कहकर वो करीब से उठने ही लगी थी कि अरसल ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा से उसे कुर्सी पर बिठा दिया। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं ताया जान को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, और अभी तुम मुझे जानती ही कितना हो। पहले मुझे खुद को जानने का मौका दो, थोड़ा सा तुम मेरे बारे में भी जानना, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। उसके लबों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा दिलाने वाली चमक थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पांव सलामत रहें और तुम्हारे चेहरे के हालात ना बदलें, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। सारे मजाक एक तरफ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम्हें यहां पर रोका हुआ है, वरना मुझे कोई शौक नहीं। जल्दी से अरसल ने अपने चेहरे के तासुरात तब्दील किए। अब की बार वो संजीदा नजर आ रहा था। उसकी आवाज से भी लग रहा था कि वो बहुत ही जरूरी बात है। कहो, मैं सुन रही हूं, क्या मसला है? कल रात तुम किसके साथ आई थी? अब की बार वो हैरानगी से अरसल के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे लगा था कि किसी ने उन दोनों को नहीं देखा, मगर शायद उसका ये कजन अपनी उकाब नजरों से उनका जायजा ले चुका था। अपने दोस्त के भाई के साथ वापस आई थी? क्या तुम्हारी उसके साथ दोस्ती है? तुम्हें उससे क्या मसला? अपने काम से काम रखो। अब की बार उसने चिढ़ते हुए कहा। मेरा काम यही है कि मैं अपने खानदान की औरतों पर नजर रखूं और अपने खानदान की औरतों को कोई भी ऐसा काम करने की इजाजत ना दूं जिससे बाद में मेरी इज्जत में फर्क आए। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। मैं एक बहुत सख्त मिजाज इंसान हूं, और जहां पर खानदान की इज्जत का सवाल आता है, वहां पर तो मैं किसी भी इंसान को खातिर में नहीं लाता। वो इंसान जो कोई भी है, उसके साथ तुम्हारा जैसा भी ताल्लुक है वो खत्म कर दो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि तुमसे झूठ बोलूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें सच बता ही देना चाहिए। तुमने अगर उस इंसान के बारे में जानना है तो जान लो, मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूं। इतनी मोहब्बत कि उसके बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कल रात में उसकी बर्थडे पार्टी पर गई थी। हम लोगों ने एक साथ बहुत एंजॉय किया था। बहुत जल्द वो रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाएगा और मैं उससे निकाह कर लूंगी। उसने दांत पीसते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। दूसरी तरफ अरसल ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़ी औरत का मुंह नोच डाले। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम जानती भी हो कि तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। यार देखो, ये ड्रामेबाजी ना करो अरसल। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम में से कोई भी तुम्हें नहीं जानता। जब तुम आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर मौजूद थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे करतूतों के बारे में किसी को नहीं पता था? तुम एक लड़की के साथ फ्लैट में पकड़े भी गए थे और जेल भी जा चुके हो। मैं ये सारी चीजें जानती हूं। अगर मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ है तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझे मुकाबला करने में कोई मसला नहीं। वो हद से ज्यादा बदतमीज साबित हुई थी। अरसल को अंदाजा नहीं था कि वो इतनी साफ गोई का मुजाहिरा करेगी। फामिया उसके करीब से होकर कमरे में चली गई थी। अब वो अकेला ही वहां पर खड़ा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा, उसने दिल ही दिल में कहा और अब अपने अब्बा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ बाबा ही हैं जो इस मामले में उसकी मदद कर सकते हैं। परीशा एक बार फिर उसके दोबारा से सामने आई थी, मगर इसने नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि वो फिलहाल किसी भी नापसंदीदा औरत का चेहरा नहीं देखना चाहता था। बाबा जान, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो जाकर उनके करीब बैठ गया। अरे बेटा, मैं भी तुमसे बात करने वाला था। मैं सोच रहा हूं कुछ ही दिनों में तुम्हारा और परीशा का निकाह रख लूं। खानदान वाले भी बार बार सवाल कर रहे हैं कि कितना अरसा तुम लोगों ने रिश्ता चलाना है।
दोनों घर के ही बच्चे हो, घर की बात है। जितना जल्दी हो सके फिक्स हो जाए तो अच्छा है। बाबा जान, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहता था। मैं परिश्य से शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने तुम्हारे चचा जान को जबान दी हुई है, मैं कैसे मुकर सकता हूं? बाबा जान, ये सब कुछ इसी की वजह से कह रहा हूं। वो मुझे पसंद नहीं करती। कल रात भी वो रोती हुई मेरे पास आई थी। उसने नापसंदीदगी का इजहार किया था। अब आप खुद बताएं, क्या ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना आसान है जो दिल में किसी और को रखती हो? क्या मतलब है इस बात का? तुम पागल तो नहीं हो गए? खानदान की लड़की पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? वो बहुत ही शरीफ और मासूम लड़की है। वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो मैं उसको आपके सामने हाजिर कर सकता हूं और मेरे पास सबूत भी मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं? बाबा जान के कहने पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, जहां पर परीशे की अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें मौजूद थी। किसी जगह वो उसके साथ बैठकर खाना खा रही थी तो किसी जगह वो उसके साथ घूम रही थी। ये लड़की पागल हो गई है। ये लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? वो एकदम जलाल में आ गए। जो भी था वो इस खानदान की इज्जत थी और उसने ये सब कुछ उस वक्त किया था जब वो उनके बेटे के साथ ताल्लुक में भी मौजूद थी। मैं अभी भाईजान से इस बारे में जाकर बात करता हूं और उन्हें कहता हूं कि अपनी बेगैरत बेटी को अपने पास ही रखें। नहीं बाबा जान, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी इन सारी चीजों की। बस आप अपने दिमाग को सुकून पहुंचाएं और एक बात याद रखें कि जब भी मैं इस रिश्ते से इनकार करूंगा या ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करूंगा तब आप मुझे मना नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आप किसी से कोई बात ना करें, वरना मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। जहां तक अरसल का सवाल था, उसने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया था। परीशा जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसके दिल में अरसल के लिए नफरत बढ़ गई थी। अरसल, तुम्हें बहुत जल्द सबका हिसाब देना होगा, उसने दिल ही दिल में सोचा। एक बात का तो उसे अंदाजा हो चुका था कि जल्द या बदेर उसके ताया जान उसके बाबा को जरूर जलील करेंगे और अब इसी वजह से उसका वजूद खौफ से कांप रहा था। वो जानती थी कि अगर ये सब कुछ हो जाता तो वो अपने महबूब से निकाह भी नहीं कर सकती थी। आंसू उसकी आंखों से तेजी से बह रहे थे। अपने रब से मदद तलब करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। जहां तक अरसल का सवाल था, वो हद से ज्यादा मतलबी साबित हुआ, जिसने अपने करीबी लोगों को ही अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये बात सच थी कि उसे पहले फामिया बहुत बुरी लगती थी। वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से इन दोनों का टाकरा हुआ था, उस दिन से ना चाहते हुए भी वो उस लड़की की जात में दिलचस्पी लेने लगा था। उसे वो दिन अच्छी तरह से याद था। तालीम हासिल करके वो पाकिस्तान वापस आया। उसने अपने खानदान वालों को सरप्राइज देने का फैसला किया था। अभी वो बैरूनी गेट के करीब ही आकर रुका था कि एक लड़की तेजी से भागती हुई आई और उससे जाकर लगी। वो कोई और नहीं बल्कि फामिया थी। उसका सर जोर से अरसल के सीने से टकराया था। अल्लाह जी, मेरा सर! कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए? ये कौन सी जगह है खड़े होने की? फामिया ने अपनी गलती मानने के बजाय उस पर ही चढ़ाई करने का फैसला कर दिया। बीबी, अंधा मैं नहीं बल्कि अंधी तुम हो गई हो, जिसको एक 6 फुट का इंसान नजर नहीं आ रहा। क्या आंखें किराए पर देकर आई हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की बात कहने की? वो उसकी आंखों में देखकर नफरत आमेज लहजे में कहने लगी। मेरा दिमाग खराब मत करो और जल्दी से साइड पर हो। अचानक ही फामिया की नजर अपने पालतू कुत्ते पर पड़ी थी, जो दूर से भागता हुआ आ रहा था। वो सीधा उसी की तरफ चला रहा था। फामिया जानती थी कि उसके कुत्ते में जरा भी अकल नहीं है और अगर वो इसी तरह इस हालत में खड़ी रही तो वो जरूर जाकर अरसल से टकरा जाएगा
اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، مجھ میں بالکل بھی عقل نہیں، میں بہت ہی کم عقل لڑکی ہوں، اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں، کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ خیر، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے حلیے سے مانگنے والے تو نہیں لگتے، لیکن جس طرح کی تمہاری باتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھی بھیک چاہیے۔ لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو، بھیک چاہیے ہوگی تمہیں، میں تم جیسے 5-6 بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اچھا جی، محترم کو غصہ بھی آتا ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ کتا زور سے جا کر ارسل سے ٹکرایا تھا۔ ایک دم سے کتے کو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گیا اور پھر چلانے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے کتوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ فامیہ یہ دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی اور اس کے پیٹ میں شدید درد پڑ گیا تھا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ جب دادا جان نے باہر سے آوازیں سنی تو تیزی سے باہر نکلے تو دیکھا ان کا پوتا کھڑا تھا اور قریب ہی وہ ہنس رہی تھی۔ فامیہ، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ وہیں سے چلائے تو وہ بھی سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، میں خود نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ دیکھیے میرا کتا کیسے اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کہیں یہ ارسل تو نہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو اس کے دادا جان زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ ہائے اللہ جی، میں تو مر گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ جانتی تھی کہ تایا جان کو جب اس بات کی خبر ہوگی تو وہ اسے بہت ڈانٹیں گی۔ بلا شبہ وہ اس سے محبت کرتی تھیں، اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کی ضروریات پوری کرتی تھیں، لیکن جہاں پر فامیہ کی غلطی ہوتی تھی وہ اسے ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی تائی سے بہت گھبراتی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی، شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سو گئی۔ شام کے وقت اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی اور اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے خواب میں اپنے کتے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی پریشے کھڑی تھی جس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی فامیہ کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی، کیا تم نے تھوڑی دیر پہلے گولی کی آواز سنی ہے؟ نہیں، میں نے گولی کی آواز نہیں سنی۔ کیا کسی نے فائرنگ کی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ سامنے ہی ارسل اپنے ہاتھ میں دادا جی کی بندوق اٹھائے کھڑا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا کتا مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ہوئی کتے کے پاس جاتی، ارسل نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو تم نے اس حرام کے بال کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، گارڈ اسے اٹھا کر باہر پھینکو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور خبردار جو کسی نے میرے شیرو کو ہاتھ لگایا۔ وہ اس وقت حلق کے بل چلائی تھی۔ سب گھر والے خاموشی سے کھڑا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کتا اس کے پاس پچھلے 4 سالوں سے موجود تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اسے ہاتھوں سے کھلاتی تھی اور اپنے ساتھ واک پر لے کر جاتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ باقی گھر والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے مگر کہتے کچھ نہیں تھے۔ دادا جان بھی خاموش تھے کیونکہ ان کی پوتی خوش تھی۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد یہ واحد وقت ہوتا تھا جو وہ خوشی محسوس کرتی تھی۔ وہ دادا جان کے چہرے کی طرف دیکھ کر شکایتی انداز میں کہنے لگی، دادا جان، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا پسند تھا، میں اس کے ساتھ کتنی اٹیچ تھی، میں اس کے بغیر کیا کروں گی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایک کتے کے پیچھے رو رہی ہو؟ تم اپنا منہ بند رکھو، تم 1 نمبر کے خبیث انسان ہو
और तुमसे ज्यादा जलील इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। जो हाल तुमने मेरे कुत्ते का किया है वही हाल मैं तुम्हारा करूंगी। तुम देखो मैं कैसे सारी दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बनाती हूं। तमाम घर वाले वहां पर जमा थे और वो दांत पीसते हुए अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी। बेटी ये क्या कह रही हो, होश के नाखून लो। मैं जानता हूं उसने गलत किया है, मगर बदतमीजी करना ठीक बात नहीं। दादा जान ने आगे बढ़ते उसे खामोश करवाते हुए कहा था, वो तो हत्थे से ही उखड़ गई थी। आप लोग इसका साथ दे रहे हैं क्योंकि ये खानदान का सबसे बड़ा बेटा है, मगर मुझसे इस चीज की उम्मीद ना रखिएगा। आज के बाद मैं सब लोगों को बता देती हूं कि इस इंसान से शदीद नफरत करती हूं। ना तो मैं इसकी इज्जत करूंगी और ना ही कभी इससे अच्छे से बात करूंगी। इससे भी कहिए कि मुझसे कोई बात ना करे। आज के बाद हम दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई है। इसने मेरी शेरू का कत्ल किया है, अब मैं इसका कत्ल करूंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये इस दुनिया से नहीं चला जाता। ताया और ताई जान सामने खड़े थे। अपने बेटे के बारे में इस तरह के ख्यालात सुनकर उनका तो दिल हौल रहा था, मगर वो उस बच्ची की जहनी हालत को समझते थे, इसी वजह से खामोश थे। उस दिन के बाद वाकई अरसल से उसकी दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी थी। जहां पर भी वो उसे देखती अपना रास्ता तब्दील कर लेती या उससे बदतमीजी करके निकल जाती। काफी अरसे तक तो वो ये बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब उसका भी सब्र जवाब दे चुका था। एक दिन वो किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। उसके सर में शदीद दर्द था। पिछला पूरा दिन सफर में गुजरा था, जिस्म में थकावट भी हो रही थी और अभी थोड़ी देर बाद उसने फिर से एक और सफर के लिए निकलना था। यार मेरे लिए भी एक कप चाय तो बना दो। मैं अपने शेरू के कातिल के लिए हरगिज चाय नहीं बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर अरसल ने एक गहरी सांस ली। अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और फिर से बोला, देखो मेरी तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं और ना ही मैं तुमसे बहस करना चाहता हूं। हम दोनों की दुश्मनी अपनी जगह पर, मगर मुझे वाकई इस वक्त एक चाय का कप चाहिए, वरना मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तुम प्लीज अपनी ये ड्रामेबाजियां बंद करो, बाद में हम इस बारे में बात कर लेंगे। जल्दी से मुझे चाय बना कर दो। मैं आपके बाप की नौकर नहीं जो आपको चाय बना कर दूं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, बेसाख्ता अरसल का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। आज तो तुमने मुझसे बदतमीजी कर ली, लेकिन दोबारा कभी मुझसे इस लहजे में बात ना करना, वरना तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। वो बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखे उसे देखे चली जा रही थी। आपने किस हक से मुझ पर हाथ उठाया? उसने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा। इस घर का बड़ा बेटा होने के हक से, वो भी उसी के अंदाज में बोला। आप इस घर के बड़े बेटे हैं और मैं इस घर की कुछ हूं ही नहीं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे साथ बदतमीजी करें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर घटिया होंगे। मैं आपसे शदीद नफरत करती हूं, इतनी नफरत करती हूं कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अल्लाह करे आप मर जाएं या फिर मैं खुद मर जाऊं, क्योंकि आपके होते हुए मुझे कभी भी इस घर में सुकून नहीं मिल सकता। आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझ पर जुल्म करते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। आप मेरे साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह ताला आपसे आपकी जाति का हिसाब जरूर लेगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुकी थी, जबकि अरसल परेशानी से अपना माथा मसलने लगा। वो ये सब नहीं करना चाहता था, मगर गुस्से में इतना था कि खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। अब उस दिन के बाद फामिया उससे कतराने लगी थी। ना तो वो इसका सामना करती थी और ना ही वो उस जगह पर जाती थी जहां वो मौजूद होता था। अगर कभी वो उसके पास चला जाता तो वो वहां से उठकर चली जाती। जिंदगी तेजी से गुजरती जा रही थी। जब एक दिन उसकी मुलाकात कामरान से हुई, वो इसे बहुत पसंद करता था,
दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन फामिया मुश्किल में थी और कामरान ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, सबसे बढ़कर कि वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। फामिया की कोई सहेली नहीं थी, क्योंकि उसकी किसी भी लड़की से नहीं बनती थी। वजह यह थी कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड की मालिक थी, जबकि आजकल की लड़कियों के जहन किसी और तरफ निकले हुए थे, जिसकी वजह से उसे लड़कियों से दोस्ती करते कोफ्त महसूस होती। लेकिन जहां तक कामरान का सवाल था तो वो उस जैसा ही था। दोनों की सोच मिलती थी, तरीके मिलते थे। सबसे बढ़कर यह कि दोनों की आदतें मिलती थीं। जाने कब ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई, दोनों को ही पता न चल सका। सबसे पहले कामरान ने ही उसे प्रपोज किया था। वो उससे शादी करने के लिए बेचैन था, मगर फामिया ही उसे रोक रही थी। वो चाह रही थी कि पहले परीशे की शादी हो जाए, उसके बाद वो अपने बारे में सोचेगी। आज उसने दादा जान से जाकर दोबारा से परीशे के बारे में बात की तो वो परेशानी से कहने लगे, बेटा उसका तो मामला मुझे बंद होता नजर आ रहा है। दिल ही दिल में वो खुश हुई कि चलो परीशे की ख्वाहिश पूरी हो रही है, लेकिन जब उसे वजह मालूम हुई तो उसका दिल किया कि वो अरसल की जान ले ले। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया होगा। अगर वो इंसान चाहता तो खामोशी से ये रिश्ता तोड़ सकता था, कम से कम परीशे की इज्जत महफूज रह जाती। मगर उस इंसान ने सबके सामने उसे जलील किया और खुद को घर का बड़ा बेटा कहता था। वो उसे बताना चाहती थी कि अगर उसके घर में कोई ऐसा इंसान होता तो वो उसे उसी दिन जान से मार देती जिस दिन वो इस तरह की घटिया हरकत करता। खैर परीशे तो सब खानदान वालों की नजरों से गिर चुकी थी। सब लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे और इसमें कोई शक नहीं था कि ये अरसल नहीं किया है। वो अपनी बालकनी में खड़ा था जब वो गुस्से से वहां पर गई। इससे पहले कि वो उससे मुखातिब होती, अरसल उसे अपने माजी का हवाला देते कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं हाथ ना उठाऊं तो यहां से चले जाओ, क्योंकि फिलहाल मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगी। लड़की जबान संभाल कर बात करो। वो हत्थे से ही उखड़ गया। मुझे अच्छी तरह पता है तुम जैसे इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। तुमने परीशे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों की? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसके साथ यही सब कुछ होना चाहिए था। वो नॉर्मल अंदाज में बात करते बोला, तुमने उससे एक मोहब्बत करने वाले को जुदा कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम कभी चैन से रह पाओगे? देखो बीबी, पहली बात तो यह है कि तुम हकीकत के बारे में नहीं जानती। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। बेहतर यही है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, और अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी वैसा ही करती। मैं जानना चाहती हूं, मुझे बताओ, वो मजबूत लहजे में बोली। अरसल भी गहरी सांस लेते उसके चेहरे को देखने लगा और फिर अजीब से लहजे में कहने लगा, तुम इतनी ढीठ हो सकती हो मैंने सोचा नहीं था। चलो एक बात का तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम बगैर जलील हुए यहां से नहीं जाना चाहती। ठीक है, जिस इंसान से तुम्हारी प्यारी कजन मोहब्बत करती थी वो एक नंबर का फरीबी इंसान था। लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करता था। मैंने तुम्हारी प्यारी कजन को हर तरह से समझा कर देख लिया, मगर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जिस दिन वो मेरे पास आई थी उसी दिन मुझे हकीकत के बारे में पता चल गया था। मैंने बाद में अपने गार्ड से कहकर उस इंसान के बारे में पता लगवाया तो मुझे ये पता चला कि बहुत जल्द वो तुम्हारी कजन को दुबई भेज देगा। मुझे डर था कि अब ये कहीं घर से ना भाग जाए। माँ बाप भी उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसी वजह से मैंने जाकर सब लोगों को बता दिया ताकि चचा चच्ची उस पर सख्ती करना शुरू करें। अगर मैं वो सब कुछ ना करता तो आज शाम के वक्त
तुम्हारी कजन यहां से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती। मैंने तो उस लड़की को जलील होने से बचाया है। तुम लोग मेरा शुक्र अदा करने के बजाय मुझे बातें सुना रहे हो। वाह यार, भलाई का कोई जमाना नहीं रहा। और हाँ, एक और अहम बात, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले थे। अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाती और तुम दोनों दुबई चले जाती तो सोचो कितनी जिल्लत भरी जिंदगी होती तुम दोनों की। अपनी बात मुकम्मल करके वो फिर से बाहर की तरफ देखने लगा, जबकि फामिया के पास तो अब अल्फाज ही नहीं बचे थे। वो ठीक ही तो कह रहा था, परीशे कम उम्र भी थी और नादान भी। इस उम्र में इस तरह की गलतियां तो हो जाती हैं, मगर ये गलतियां गुनाह में ना बदल जाएं, इसलिए इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इसने भी तो एहतियात ही की थी। तो क्या तुम दोबारा परीशे को कबूल नहीं करोगे? मैंने उसे पहले भी कबूल नहीं किया था। उसे मेरे सर पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर बाबा की बातों से मजबूर हो गया था। अब चूंकि हकीकत सबके सामने है और सब लोग जानते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी उसे पसंद नहीं करता, तो फिर शादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस औरत से मैं शादी करना चाहता हूं, बहुत जल्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो गहरी सोच में मुब्तला हो गई, मगर मुंह से कुछ भी ना बोली। खामोशी से अपने कमरे में चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहन में बार बार कामरान का चेहरा घूम रहा था। वो जानती थी अब अगर उसने जरा सी भी देर की तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसी वक्त उसने कॉल मिलाई और दो टोक अंदाज में कहने लगी, तुम जितना जल्दी हो सके अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो। तब तक मैं अपने ताया जान को और ताई जान को बताती हूँ। मुझे यकीन है कि वो राजी हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हें 1 हफ्ते तक भेज दूंगा। तुम मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो फामिया उसे तसल्ली देते कहने लगी, नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं, बस मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती और मुझे ये डर भी है कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और तय ना कर दें। वो दोनों इसके बाद काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुनाते रहे। कामरान उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अगले दिन इसने जाकर अपने ताया जान और ताई जान को बता दिया। दोनों ने किसी भी तरह की कोई गलत बात नहीं की थी, बल्कि बहुत ही तवज्जो से उसकी बात सुनी थी और फिर उसे नसीहत करते हुए कहा था कि हम लोग उसके घर वालों से मिलेंगे। अगर तो वो हम लोगों को पसंद आते हैं तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे मयार के नहीं लगते तो हम माजरत करते हैं। दोनों की बातें सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। मैं जानती हूं आप कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। उसके लहजे में मान था और यकीन था। दूसरी तरफ जब अरसल को इस बात की खबर मिली तो उसके लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। उसने किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। कोई शख्स इस पर गौर नहीं कर रहा था सिवाय परीशे के। वो सोच रही थी कि अरसल को तकलीफ पहुंचेगी, वो वावेला मचाएगा, मगर उसने तो आवाज भी नहीं निकाली। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कामरान के घर वाले रिश्ता लेकर पहुंच गए। दोनों खानदान वालों के दरमियान बातें हुई और दोनों ही एक दूसरे को पसंद आए। फामिया को अपने वालिदैन की याद आ रही थी, जिनके इंतकाल के बाद वो अपने ताया जान के घर आ गई थी। वो जानती थी अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसे देखकर वो बहुत खुश होती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसके वजूद का हिस्सा बनती चली जा रही थी। उसे अजीब बेबसी का एहसास हो रहा था। अपने दिल की कैफियत समझने की कोशिश करती, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेहंदी का दिन भी आन पहुंचा। उसने अपने हाथों पर कामरान के नाम की मेहंदी लगाई, मगर जरा भी रंग नहीं चढ़ा। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। सिंगार में सिर्फ मेहंदी ही थी जो उसे बहुत पसंद थी। उसकी कजन शरारत से कहने लगी, लगता है तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपनी फजूल की बातें अपने पास रखो। ये सब कुछ तो यूं ही कहा जाता है। मेहंदी खराब थी, इसी वजह से रंग नहीं चढ़ा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दूसरी कजन ने लुकमा दिया, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। उस रात उसने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था।
जो ये था कि वो उससे दूर हो गई थी। अगले दिन वो स्टेज पर तैयार बैठी थी, मगर दूल्हे का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। वो अभी तक नहीं आया था। सब लोग बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। 5 घंटे गुजर चुके थे। अब उसके ताया जान को भी फिक्र होने लगी थी। उसकी होने वाली सास उन लोगों से माजरत करते हुए कहने लगी, हमें लगता है कि कोई बड़ा मसला हो गया है, हम माफी मांगते हैं। सारे मेहमान बाहर आए बैठे थे। अगर इस दौरान निकाह ना होता तो उन लोगों की बहुत बेइज्जती होती। इसीलिए ताया जान ने अरसल को उसके पहलू में बिठा दिया और उन दोनों का निकाह पढ़ाने का फैसला किया। फामिया ने इस शर्त पर निकाह किया था कि वो बाद में तलाक ले लेगी, मगर जब वो अपने कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी, अरसल कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी बातें सुनकर फामिया को लगा कि उसकी कदमों के तले से जमीन निकल गई है। उसने साफ अल्फाज में अपनी बीवी को समझा दिया था कि अब तुम कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती। अब तुमने अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, और जहां तक कामरान का सवाल है तो उसे मैंने ही गायब करवाया था। फामिया के दिल में उसके लिए नफरत बढ़ चुकी थी। उसने नफरत का इजहार भी किया था, मगर अरसल ने शौहर होने के नाते उस पर अपना हक साबित कर दिया और सारे हुकूक भी वसूल कर लिए। तकलीफ के मारे फामिया का बुरा हाल था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी, जबकि अरसल को अब अपनी ज्यादतियों का अंदाजा हो रहा था। उसे उस मासूम लड़की के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। उसने हर तरह से माफी मांग के देख लिया, मगर फामिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी वजह से कामरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उसकी गलतफहमी उस दिन दूर हो गई जिस दिन उसने कामरान को किसी और लड़की के साथ हंसते हुए देखा। वो दोनों पार्क में मौजूद थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। अरसल भी फामिया के साथ था, और तब उसने ये बात सोची थी, अगर उसका महबूब उससे दूर होकर इतना खुश रह सकता है तो वो खुश क्यों नहीं रह सकती? वो क्यों नहीं अपने शौहर को मोहब्बत दे सकती? वो क्यों नहीं अपने शौहर को माफ कर सकती? और फिर उस दिन उसने अरसल को माफ कर दिया और उसे एक मौका देने का फैसला किया, और उसका ये फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। अरसल ने उसको तब्दील होकर दिखाया। वो वैसा ही बन गया जैसा फामिया चाहती थी। वो उसकी इज्जत करता था और उससे मोहब्बत करता था। सबसे बढ़कर यह कि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।